ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर ऑफ पीडी क्या होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं और क्वासी लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि किसी भी इक्वेशन को देखकर हम कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे कि वो लीनियर है, नॉन लीनियर है या क्वासी लीनियर है, उसका ऑर्डर क्या है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस टर्न पर डिस्कस कर ली हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, जो कि हमारा मेन पॉइंट भी है कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी हमें गिवन है उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पीडीई or any equation. So in case of partial differential equation or PDE, the solution means that is any function or values which satisfies the given equation, that is called solution. For example, suppose we have any partial differential equation. This is f x y z p q is equal to 0. I am considering here only the first order partial differential equation. And suppose we have some solution of this form. This is z is equal to some function of x comma y. That is called solution when this function z satisfies this equation. So that means we will have to find del z upon del x, that is p. We will have to find the value of q and we will put all these value in that given equation and right hand side will be 0. That means we will get 0. So any function or values which satisfies the given partial differential equation is called the solution of that PDE. Sometimes you will discuss solution in a domain. Any domain is D is given to you and we have to find solution in this domain. So solution in this domain means whatever solution we get, this solution satisfies the given equation on all the points of this given domain. That means if this domain have 100 point, 200 point, 1000 points, so whatever value will come in of the solution, that solution will satisfy this equation at that point. So we will discuss later on. So this is called in general solution. So now how to get solution and what type of solution we are going to get. So first solution is called this is complete solution. So we will discuss what is complete solution basically. Complete solution means, suppose we have any equation. Again, I am taking first order partial differential equation. This is x y z p q is equal to 0 and we find the solution and the solution comes out of the form. This is g of x comma y comma z a comma b. That is, we have two arbitrary constants that is equal to 0. You can say this is solution. These are where a comma b are arbitrary constants. So this solution is called complete solution. Complete solution. Yes, sometimes it is called complete integral. So what does it mean? If we have a linear PDE and in the solution we have two arbitrary constants, then the solution is called our complete solution or complete integral. This is first kind of solution. So other kind of solution is called general solution. So what is general solution? General solution is that suppose we have an equation f x y z p q is equal to 0. This is first order PDE. Since p और q दोनों फर्स्ट ऑर्डर के हैं तो फर्स्ट ऑर्डर की पीडी है, लीनियर है क्योंकि p और q की पावर भी 1 है और इसका सॉल्यूशन है g x y z a b is equal to 0. लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर b is nothing independent. This is a function of a. So that means our solution is g x y z a comma this is phi a is equal to 0. So basically अगर हम इसको देखें इस कर्व को, this curve is what? This is envelope of family of surfaces. Family of surfaces.
दिस कर्व इज इन्वेलप ऑफ फैमिली ऑफ सर्फेसिस, दैट मीन्स सर्फेसिस यानी जो भी हमारा सॉल्यूशन आ रहा है ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसकी, दिस इज सर्फेस, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. सो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन. और थर्ड था हमारा पार्टिकुलर, इसको जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं और जनरल इंटीग्रल भी बोलते हैं. एंड द थर्ड वन सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल या पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको. सो व्हाट इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन? पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सपोज करो अगेन हमारा जो सॉल्यूशन है ये है जी एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0 और यहां पे हम कोई भी हमारी को कंडीशंस दी हुई हैं उन कंडीशंस की हेल्प से हम इन कांस्टेंट्स को रिमूव कर पाते हैं. तो हमारे को जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल. दिस सॉल्यूशन इज पार्टिकुलर solution. So how to get particular solution, how to get general solution, and how to get complete solution, we will discuss this thing later on this chapter. So one thing is very interesting कि partial differential equation का जो भी solution होता है वो solution unique नहीं होता. Partial differential equation जब भी हम discuss करेंगे we will see its solution is not unique. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करें del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज बेसिकली लाप्लास इक्वेशन. वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन लेटर ऑन. इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन मिलते हैं हमको अगर हम इस इक्वेशन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करें. एक सॉल्यूशन इसका हमें मिलता है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक सॉल्यूशन इसका आता है u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक सॉल्यूशन आता है इसका दिस इज साइन के एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक के वाई. सो दीज आर द solution of this problem. हम ये वाला मेथड डिस्कस करेंगे. हम ये वाले मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब वी विल डिस्कस लेटर ऑन. तो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा सॉल्यूशन हम एक्सेप्ट करें. तो ये चीज हमारी डिपेंड करती है कि जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो किस प्रॉब्लम यानी जो भी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, उस प्रॉब्लम की क्या क्या कंडीशंस हैं, इनिशियल कंडीशंस क्या हैं या बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हीट इक्वेशन के बारे में, लाप्लास इक्वेशन अगर स्टेडी स्टेट हीट इक्वेशन के टर्म्स में देखें तो इसका जो थर्ड सॉल्यूशन है हम इसके थर्ड सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन जो भी हमारी इनिशियल कंडीशंस गिवन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो जो भी सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है ये डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम हमारी किस तरह की है और हम उस प्रॉब्लम को जो भी हमारी कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशंस हैं या इनिशियल कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई, कौन सा सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. थैंक यू. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है दैट इज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा दैट इज सॉल्यूशन ऑफ linear PDE of order 1. Do you remember this thing? Solution of linear partial differential equation of order 1. हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे लैग्रांजेस मेथड में. तो नेक्स्ट दो तीन वीडियोस जो हमारे आएंगे उसके अंदर हम इन सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करना है वो विल डिस्कस दीज थिंग्स. सो थैंक यू.